एक्चुअली करना था, ऑफिस से बैठा था आराम से, लास्ट में वो इवेंट कुछ बाजू में था तो था शो था, वहां से घर पे फटाफट भाग के आना पड़ा आधे में, तो उसकी वजह से पूरा डिले डिले हो गया। ये डिले तो नहीं, हमने मैं सोची मैं ही डिले पे हूँ, कनेक्ट नहीं हो रहा था तो मैम जी मेरा नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। अच्छा 9 बजे तो पूरा ड्रम का कुछ ड्रमिंग इवेंट था, तो शोर शोर पूरा कर दिया। लो रेवती, सरिता, गोपाल, भावना, गीता, मनोज शर्मा, जूम यूजर। तो स्टार्ट कहाँ से करें? वैसे कितने जनों को लगता है, अगर पूछो तो, कि डायबिटीज और थायराइड रिकवरेबल, मतलब क्योरेबल है? क्योंकि जहाँ तक मैंने ऐसे एलोपैथिक में जो प्रेजेंट करते हैं बताते हैं, तो वो वैसे रहता है कि डायबिटीज हुई है, शुगर हुआ है, तो एक तो प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं, काफी केयर, और बाय कंटिन्यूस दवाइयाँ लेनी पड़ती है, गोली या इंजेक्शन से, थायराइड में डायबिटीज में दोनों में मोस्ट ऑफ द केसेस। और इसमें जो हम करते जा रहे हैं, मतलब जिस प्रोसेस से मैं कर रहा था उससे बिल्कुल क्योर हो जाता है, गोलियां भी बंद हो जाती है, कोई डाइटिंग या रेस्ट्रिक्शंस की जरूरत नहीं है उसमें। इसके साथ कोई Umesh, can I सप्लीमेंट एक्स्ट्रा? interfere? Can I या श्योर, interfere? या You know, last week I got my sugar tested. I'm diabetic from 15 years, and I got my ओके sugar tested. Apparently, I mean, blood sugar, I have never got my urine tested. So, in the urine, ओके it is positive. And doctor has ओके asked me to not to eat rice, samosa, and you know, she's put me on a strict diet. And she says, if you don't ओके listen to me, then you had it, you know. And she's asked me to eat only millets and ओके to be on very very strict diet. Okay, and ओके this is या actually killing me because you know I am very fond of food. Not that I overeat anything, but the thing is, at least basically, you know, like idli, dosa, I should not be having it. She said no, nothing like this, only millets. Of course, ओके I can make millet dosas and everything, but you see, like या no बट rice, there's a restriction. या all these kind of restrictions, and I'm feeling very sad because they say that you know, sugar should not be seen in the urine, and it is there in the urine now for me. But I got my kidneys tested, it's all safe, there is no आवाज problem with the बहुत डिम आ kidney. रही है, आवाज बहुत डिम आ रही है, आवाज थोड़ा मेरी लाउड। या रेवती जी की? Umesh, your voice is very slow. माय Hello, या hello, माय वॉइस इज yeah. स्लो। So I ओके wanted to know, like, you know, if you have sugar या in the urine and then it is diabetic, will that be cured as well? yes, yes, for sure. Now is it better? Voice is fine, or is Yeah, it yeah, yeah, still perfect, perfect. fine? Huh? Oh, Hmm. thank you. Yeah, it's definitely curable. Hmm. And well, I had connected both topics, diabetes and thyroid, in a way, because what happens is नहीं mostly उमेश, our आपकी body आवाज is ना just कट रही है, कट कट के आ रही है, जैसे आवाज है ना कट कट के आ रही है। हाँ ओके, आई एक मिनट, थिंक तो मैं दूसरे मोबाइल ऑडियो में से से ही कनेक्ट कर। कनेक्ट करता हूँ। हाँ, वही ऑडियो दूसरा कनेक्ट। अभी बेटर है? Is it better? Yeah, yeah, it's better. You know, Umesh, I want to ask you one thing. I don't Yeah. mind trying this modality that you will be giving, offering to us. But only thing is, you know, how much time do I need to take out to attend to these modalities and how do I practice it? That's what I want to know. Yeah, that will. Yeah, sure. That is what I'm going to share here. And mostly what is said, or even if a needle strikes to the death, everything is just a reflection of our choices.
or how we take it inside. So everything is a reflection of our inner world in a way. In other words, if I can say. So whether it's joy, whether it's happiness, it's disease, sadness, depression, anger, guilt, whatever, everything is just a reflection of our inner world. How we are taking things inside, consciously or unconsciously. It is just a reflection. Our body is communicating with us in the form of diseases, pains, happiness, joy. Anyway. So what we do is we work on the emotions or whatever, what is the root cause, core of it, that is showing up, that is creating disease in the body. And when we go to the depth of it, at the core of it, I am not going to impose the things on you. Okay, this is what it has happened. I take you into the position where you are going to tell and you are going to tell me about yourself. Okay, what is creating disease in your body? This is, I meant to say, not this is exactly. So you will see how small things are affecting, creating that thing in a way that stops either insulin, stop creating either insulin for which we have to control sugar or other things. Where we have to be on strict diet or take insulins, medicines, or in a thyroid. Also, whether some people gain weight, lot of weight, or some people lose weight. Hyper and hypothyroidism both are curable. And even if I share you what I had observed, I am practicing this with almost 14 plus years, and I had treated more than almost 800 to 900 clients overall in general, not only diabetes and thyroid, but with allergies, with kidney stones, with infertility, migraine, depression. But most of them are for diabetes and thyroid are the most common. I get maximum number of people. It also helps with eyesight, listening aids, immune system, digestion, and everything. And what happens is if we, what I had observed, and with the diabetes, it's mostly if we go to the core of it, it's somewhere either we are restricting to be happy and joyful, or we have convinced ourselves somewhere at some point deep down emotionally we had thought that there is no happiness in the life left for us. Particularly in that moment when we are so emotionally down or something had happened, might have happened, whether with ourselves or seeing anyone in the family or friends or relation. Okay, there's no joy left in the, even if we think for a moment and if we are so emotionally connected to that thing or that event, that is how we start creating that thing, or the events of it start creating the diabetes. The similar way, thyroid is a representation. Thyroid represents when we are insecure about, whether it's about future, about present, about financial situation, business, relationship, or anything. Whatever we are insecure about, the core of it is that. And how we take insecurities as it is going to be very different for different person to person. It differs from person to person in a way. If I share the examples of it, okay, I had a client for thyroid. It was, she was getting irritated. She had the thyroid for almost 7 to 8 years, and she was kind of very irritated, getting irritated with children, with husband, with all the family members, and she's also gaining the weight. And what shows up, what trigger was, she was insecure. I am telling this in a very short, just to get idea how the diseases are created in our body and how we can let go and release it. Is in that way I am to put it up in a very short. And normally what happened in transformation was almost took around 3 months, 2.5 to 3 months it was. And it was like she was insecure about her husband's alcohol. She used to feel alone. Whenever they go into the party, her husband left him and go with the friends for drinking alcohol. And so she was insecure about that. And
not even only alcohol, she was insecure actually about herself. Okay, if something happens to him because of alcohol, what will I do and how am I going to live in in this world? So things were showing up by layers by layers. It was very different when we started the session. At the core of it, it was like if something happens to her husband, how she's going to live. And it was showing up that her in-laws are not treating him well. She has to suffer. She has to do all the work on herself. She has to take care of the children. She is not allowed to, well, if she needs permission of everything, that is, she has created her world in that way. It has nothing to do with her in-laws or husband. She had conditioned in a way how it's going to be, how I have to be as my husband's wife, how she has to be in in-laws. But below, deep down the core was like what is going to happen if her husband dies due to alcohol, because she had some incidents in the family. If someone has passed away, her cousin father-in-law or something like that, I didn't remember it. It's almost 8 to 9 months happened. So he has got a stroke and when he had got a stroke, he was drunk and he fell down and passed away. So that triggered, from that point of time, she had started creating insecurity and connected it with alcohol. And when we figured it out, she is able to see the things in that way and being in allowance okay, if this is not a condition as I had brought up since childhood, if I have to be dependent on my husband, if he passed away, then there is no more life to it. And आई थिंक आपकी वॉइस चली गई है, मेरे से चली गई. आई कांट हियर यू. अब Umesh, no हल्का voice, हल्का. can't hear you. You're muted. No voice at all. बाकी सबको आ रही है, पर धीरे धीरे बराबर आ रही है, अब धीरे धीरे आ रही है. क्लैरिटी नहीं है. आवाज सबको आ रही है. Yeah, now it is better. अब आ रही है. अच्छा, अब आ now रही it's better. अब आ रही है. है. अब आ रही है. अब आ रही है. Okay. Hello, Sugandha. Hello, Shrestha. Sabir Kumar and Nushma. Welcome. Thank you for joining. So, Basu. अनिता जी, आप क्या बोल रहे थे? कुछ बीच में बोल रहे थे. सॉरी, आवाज सही नहीं आ रही थी. हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही, यही बोल रही थी. बट जो आप स्टोरी बना रहे हो, वो मेरी भी स्टोरी है. ओके, अच्छा. ग्रेट. वो इनसिक्योरिटी बचपन से आ रही थी उनकी के अगर हस्बैंड नहीं है तो पूरी लाइफ उसने वैसे ही डिफाइन की हुई थी. और जब वो देखा कि एक्चुअली इट्स नॉट लाइक दैट, कि वो ऑलरेडी कर रही है जो भी करना चाहती है, बच्चों को भी कहीं ना कहीं उसके लिए वो बना के इम्पोर्टेंट है कि उसको किस तरह से ध्यान नहीं रखेगी तो वो उसका इमेज बिगड़ेगी या जो सभी. तो जैसे जैसे वो चीजें शिफ्ट हुई तो एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन आ गया. वो देखा तो चिड़चिड़ भी बंद हो गई. वो तो 4-5 सेशंस में ही हो गया था शिफ्ट उसका, कि कम हो गई थी पर फिर भी बाकी वो था. और क्योर होने के बाद जब बिल्कुल कंप्लीट नॉर्मल लग रहा था उसको, भाई कुछ भी जरूरत नहीं है, तो वो बोले नहीं, मैं फिर भी एक बार रिपोर्ट्स करा लेती हूँ. भाई रिपोर्ट्स करा लूँ, आपको कोई प्रॉब्लम है? बोला नहीं, करवा लो रिपोर्ट्स आराम से, मेरे को क्या प्रॉब्लम. तो रिपोर्ट्स आई तो खुश होके वही बता रही थी कि देखा बिल्कुल वो आ गया. हाँ, ऐसे नंबर ऑफ केसेस है. एक कुछ बहुत या सिमिलर अगर डायबिटीज के लिए बताऊं, शेयर करूं अगर एक्सपीरियंस मेरा जो रहा है, तो अगेन उसमें भी वैसे तो बहुत सारे हैं, पर जो एक बहुत सबसे ज्यादा जो लगा था और इफेक्टिव किस तरह से चीजें क्रिएट होती है. तो जो हैप्पीनेस की बात है जहाँ से कर रहा था कि कहीं ना कहीं हैप्पीनेस हम किस तरह अवॉइड करते हैं, वो भी शायद बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे. तो उसमें ऐसे था कि जब मैंने कराया तो वो लड़की थी, अगेन गर्ल थी, 19-20 साल के अराउंड की एज थी. हाँ, 19-20 साल के अराउंड की एज थी और उसको 15 साल से था डायबिटीज. और इतना सीवियर था कि 2 इंसुलिन दिन में लेनी पड़ती थी. इंसुलिन पे ही सुबह शाम इंजेक्शन लगती थी.
और उसको था 5 साल की एज के अराउंड उसको डिटेक्ट हुआ था शुगर। जो उसको करा तो उसका रीजन ये निकला, मतलब काइंड ऑफ के उसको लगता था कि उसकी केयर करने के लिए कोई नहीं है। जहाँ के पेरेंट्स वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से केयर करते थे, हर चीज उसको हाथ में मिलती थी। तो वो आ कहाँ से रहा था, अगर देखें जैसे जो बोल रहा था ना कि खुशी नहीं मिलती है या हम कभी कहीं पे भी मान लेते हैं, तो उसको जब कराया, जब मतलब वो चीजें आना शुरू हुई, निकलना शुरू हुई, तो वो ऐसे था कि उसके दादाजी एक्सपायर हो गए थे जब 5 साल के अराउंड की एज में। और उसके दादाजी के साथ उसकी इतनी ज्यादा पटती थी कि जो भी चीज अगर कुछ भी बोले, मतलब होती नॉर्मल चीजें ही थी, बहुत छोटी छोटी, भाई चाहे टॉफी बोली तो टॉफी खिला दी, ये खाना नहीं खाना, ये चीज खानी है तो उसको लेके जा रहे हैं। तो बहुत सिंपल चीजें, पर वो उस एज में उसके लिए सब कुछ था। और पापा डांट रहे हैं, मम्मी डांट रही है, भाई कोई कुछ कर रहा है, हेलो डॉक्टर संजय, हेलो। तो उसके लिए वो पूरा वर्ल्ड था कि जो भी चीज उसको वो बोल रही है और वो दे रहे हैं, मतलब उसके दादा उसके लिए सब कुछ थे। भाई मम्मी तो डांट देती है, पापा डांट देते हैं, कोई कुछ भी बोल सकता है, पर मेरे दादा तो मेरे को सिर्फ जो भी मैं बोलती हूँ वो करते ही हैं। तो यार इतना कनेक्टेड थी हर चीज। और जैसे ही वो पास हुए, मतलब एक्सपायर हुए, तो एक तो उसके साथ था कि उसको किसी ने बताया नहीं कि ये है। जैसे उन्होंने लाई डाउन देखा, वो पड़ी हुई है बॉडी, पर किसी को बताया नहीं कि वो रेस्ट कर रहे हैं। उसको रूम में लेके गए और अंदर ही बिठा दिया, वहां से उसको लेके चले गए, तो उसको दिखा नहीं। एक दिन 2 दिन पूछा क्या हुआ, कहाँ गए, तो धीरे धीरे उसको समझ में आया कि अभी वो नहीं है। और जब वो नहीं है तो वो उससे रिलेट करने लगी कि मेरे लिए अभी कोई खुशी नहीं है, मतलब मेरे को तो बताया भी नहीं, या चीजें पता ही नहीं है, कोई बता भी नहीं रहा है, तो मेरे अभी भाई मेरे को कोई जितना फ्रीडम था या जो चीज हर बात बोलने से पूरी होती थी मेरी, वो अब नहीं होगी। काइंड ऑफ मेरी लाइफ में खुशी नहीं है ऐसे। तो खुशी का मतलब जो बोल रहा था कि हैप्पीनेस हम अवॉइड करते हैं या किसी मोमेंट में, तो वो ऐसे। पर सब जब देख रही थी उसके बाद, तो सब जने उतनी ही केयर कर रहे थे, बाकी भी जने, पाप उसके पेरेंट्स भी, हर कोई उतना ही प्यार तो उसको करता ही करता था। पर उसके माइंड में वो बैठ गया था कि जैसे उसके दादाजी एक्सपायर हो गए तो उसकी लाइफ में कोई खुशी है ही नहीं। और वहां से वो डायबिटीज धीरे धीरे मतलब सिम्टम्स आना शुरू हुए थे। उसको किसी ने भी चीज नहीं बोल दिया तो वो सीधा देखो कहीं मेरे लिए खुशी नहीं है। वो वैसे लेयर्स हम उनके ऊपर बनते जाते हैं। किसी ने कुछ भी मना किया, किसी ने थोड़ा सा भी चिल्ला दिया, तो मुझे पता है भाई उसका माइंड और बॉडी ऐसे ले रहे थे कि हाँ, मुझे पता है कि अब मेरे लिए खुशी नहीं है, मेरी वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो तो है नहीं। और जो करते थे किसी भी चीज के लिए, जो मिल रही है वो भी ठीक है, नहीं मिल रही है तो हर चीज उससे कनेक्ट करके वो इतना सीवियर होता गया था। और ये भी जैसे कराया तो 4 महीने के अराउंड लगे थे, लगभग 3.5 से 4 महीने, बिल्कुल नॉर्मल हो गया, गोलियां और इंजेक्शन भी बंद, मतलब I think many people can relate to whatever you are saying. You know, किसी के या ज्यादा होंगे, किसी के फादर होंगे या किसी के कुछ होंगे. Just the story, दोनों जो story you have shared, I can relate. थैंक यू। मतलब रिलेशनशिप्स में छोटी छोटी चीजें, थैंक यू, यस, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है। इवन जैसे वो पहले वाला थायराइड वाला बताया इनसिक्योरिटी के अराउंड, वैसे ही रिलेशनशिप्स में किसी को बिजनेस के लिए हो जाता है। वो जरूरी नहीं है कि कंटिन्यू हो सकता है, उसके तो ऑलरेडी बियॉन्ड जा चुके होते हैं हम। पर माइंड में जब एक वो ट्रॉमेटिक मतलब इवेंट होता है ना, और उस टाइम पे लगता है कि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, हेल्पलेस है, तो वो माइंड में एक इम्पैक्ट बना देता है और वहीं से हम रिएक्शन करते हैं। तो वो सब जरूरी नहीं है कि उसी टाइम ही इफेक्ट आ जाए। जैसे ही कुछ इंसिडेंट्स होते हैं ना भाई, किसी भी चीज ने वो नहीं किया या हम किसी चीज में नहीं कर पाए, तो वो लेयर्स बनाते जाते हैं कि अच्छा हाँ, देखो हमको पता था कि हम नहीं कर पाएंगे, अब तो हम लाइफ में ये हो ही नहीं पाएगा, मतलब हम खुश नहीं रह पाएंगे। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसको इस तरह से खुशी से जोड़ते हैं। और वो जब ये प्रोसेस करवाते हैं ना, जो सेशंस में जिस तरह से रेवती का भी क्वेश्चन था, और जैसे तो करना और कुछ उसमें नहीं करना होगा, जो भी हम करेंगे सिर्फ इस तरह से ही बातें करेंगे, जो जो पूछता जाऊंगा सिंपल क्वेश्चंस होंगे। और कुछ उसमें याद रखने की जरूरत नहीं है कि आपको याद होना चाहिए तो ही ट्रीटमेंट होगा प्रॉपर। सिंपल मैं क्वेश्चन पूछता जाऊंगा और जो चीज उस टाइम पे आपके माइंड में आ रही है वो मुझे बतानी है। और जैसे जैसे वो बताते जाएंगे, हो सकता है वो इवेंट हुआ ही नहीं हो आपकी लाइफ में, हो सकता है मूवी में देखा हो, किसी और का सुना हो, या लग रहा हो सिर्फ फियर हो,
पर जो भी चीज जहाँ पे अटेंशन आ रहा है वो चीजें बताती जानी है, तो उसमें से अपने आप ही कोर तक हम पहुंच जाएंगे कि क्या है आपकी बॉडी में, आप उसमें क्या डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, क्या डिसीज क्रिएट कर रहा है, डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर रहा है। और ऐसे ही डायबिटीज के भी और सारी चीजों के अगर मैं सेम एग्जांपल बताऊं एलर्जी का, तो किस जो नॉर्मली कौन से होते हैं हो सकता है सुना हो पर नहीं भी, तो उसमें एक फ्रेंड भी एक को कराया था एलर्जी के लिए, उसको था परफ्यूम, एक उसकी फेवरेट थी पर्टिकुलर ब्रांड की, वो लगाते ही उसको एलर्जी शुरू हो जाती थी, काइंड ऑफ सफोकेट होना शुरू हो जाती थी। और जब उसको कराया तो किस तरह से हम ये इसके लिए शेयर कर रहा हूँ चीजें और एक्सपीरियंसेस कि किस तरह हम कनेक्ट करते हैं और कभी वो सोच भी नहीं सकते हैं कि इसका इफेक्ट इतना आ रहा होता है बॉडी पे, या इस तरह से हमको डिसीज, मतलब हम इतना डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर सकते हैं, डिसीज क्रिएट कर सकते हैं, वो भी इतने लेवल तक। हाँ ये तो सारे आपने उमेश डायबिटीज और थायराइड ही स्पेसिफिक किया है, तो इसमें आप क्लियर करोगे तो कुछ भी आ सकता है वो तो। हाँ तो जो भी आएगा उसको एडजस्ट करते जाएंगे जैसे। हाँ सॉरी बताइए, कंटिन्यू करिए तो मैं फिर आगे एड ऑन करता हूँ। मतलब वही स्पेसिफिक डायबिटीज थायराइड के लिए है बस ये प्रोग्राम। नहीं है, काफी सारी चीजों के लिए, मतलब ओवरऑल लाइफ से ही कनेक्टेड है, हर चीज के लिए है। पर ये डायबिटीज और थायराइड हाईलाइट इसके लिए किया कि वो बहुत कॉमन है। जैसे मैंने बताया कि जितने भी लोग हैं तो उसमें 70-80% केसेस, मतलब वो इतना कॉमन होता है कि एक जना आया तो वो 2-3 जने को रेफर करता है, या हर तीसरे चौथे जने को, काइंड ऑफ हर तीसरे चौथे घर में है, जने को तो नहीं बोलेंगे। तो वो इतना कॉमन है, उसके लिए वो 2 टॉपिक्स रखे थे हाईलाइट में, वो 2 टॉपिक्स रखे थे। सिमिलरली जैसे फूड का और वो कर रहा हूँ तो उसमें मतलब फूड और डाइटिंग के अराउंड एक कॉल्स मेरे सीरीज चालू है, तो उसमें भी वो सिर्फ फूड को लेके नहीं है, बहुत जने ऐसे भी हैं जिसमें वेट और उसका कोई उनको लेना देना ही नहीं, पर फिर भी है, और वो चीजें ऐसी ऐसी शो अप होती है क्योंकि हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में अगर ध्यान हो तो बोला कि हर चीज हमारा रिफ्लेक्शन है, जो हमारे अंदर चल रहा है वो हमको बाहर हमारी बॉडी में दिख रहा है और हमारे वर्ल्ड में दिख रहा है। तो ओवरऑल हर चीज से कनेक्टेड है, सारी चीजें ही मतलब हो सकती है उसमें। होप आपके क्वेश्चन का आंसर। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन एक्चुअली। और वो एग्जांपल भी बाकी चीजों का इसके लिए ही शेयर कर रहा था, जैसे एलर्जी का भी। तो मोस्टली हम हर चीज को कनेक्शन मेन हम किस तरह से किस मोमेंट में किस इमोशंस के साथ, मतलब किस इमोशन में होते हैं जिससे चीजों को उस वे में ले लेते हैं। तो जो एलर्जी वाला शेयर कर रहा था और परफ्यूम का, तो वो ऐसे था, उसकी फेवरेट परफ्यूम थी और जब भी लगाती थी और उसको डिस्कम्फर्ट होता हो जाता था, सफोकेट फील करती थी, काइंड ऑफ एंजाइटी होना शुरू हो जाती थी। और जैसे ही वो मतलब उसमें जब डीप में गए तो उसका वो निकला कि जब वो छोटी थी और मतलब उसके पापा आते थे, उसके फादर आते थे और घर में अब्यूज होता था, झगड़ा होने की आवाज या मम्मी को मारना, और वो दूसरे रूम में होती थी, देखती भी नहीं थी, पर वो एक था कि ये स्मेल जब आती है, तो मल्ली नो वरीज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, हेलो एंड वेलकम राज, सानिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो उसने उसको उस तरह से जोड़ा हुआ था कि जैसे ही भाई पापा आते हैं, मतलब वो परफ्यूम की स्मेल घर में आती है तो घर में डिस्कम्फर्ट शुरू हो जाता है, मतलब जो नॉर्मल फ्लो में चल रहा होता है वो अशांति शुरू होती है, काइंड ऑफ शुरू होता है शोर, झगड़ा, या वो। पर एक्चुअली में उसका वो जब देखा उसने तो वो परफ्यूम से उसका लेना देना नहीं था, पर वो पापा उसके परफ्यूम वेयर करते थे और जैसे आते थे तो वो उसने उसको परफ्यूम से जोड़ा हुआ था। और वो बचपन में, उसके बाद तो उसकी फेवरेट परफ्यूम थी, वो 20-25 साल के बाद भी वो परफ्यूम फेवरेट थी, पर्स में भी रखती थी, अपने वॉलेट में ही रखती थी, पर फिर भी लगा नहीं पाती थी, लगाती थी तो वो ट्रिगर हो जाता था। और जब वो किया उसके बाद उसी टाइम पे ही फैशन, मतलब ये चीजें जैसे हुई उसी टाइम पे ही लगा के देखा तो कोई इफेक्ट कुछ भी नहीं था उसको, बिल्कुल नॉर्मल सेम। अपने आपके बोलने बोलने में ही मेरे को 3-4 पॉइंट ऑफ व्यू अपने ही निकल आए कि अच्छा अच्छा, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट। मतलब अमेजिंग, यू आर सच एन अमेजिंग पर्सन ना, मैजिक हो तुम। थैंक यू, थैंक यू यार आई हैव मिस बहुत। थैंक
इसका मतलब उमेश के अगर हम अंदर उमेश होते जाएं, मतलब इफ आवर चाइल्डहुड इज हैप्पी तो हमारी सिकनेस भी नहीं आएगी। अगर हमारी मतलब ये ट्रॉमा ड्रामा नहीं है हमारी लाइफ में, होता तो है थोड़ा बहुत, बट अगर बाय एंड लार्ज यू आर हैप्पी गो लकी टाइप, तो आपको फिर ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम रिप्रेजेंटेशन है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। या टोटली। मतलब इट इज Also, बिकॉज ऑफ how द we have taken that ना, how what point of view we have taken at that time, like अब जैसे इन्होंने At बोला that कि उसके moment, ग्रैंडफादर चले गए, तो उसने क्या पॉइंट ऑफ व्यू लिया? शी कुड हैव टेकन अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, बट शी टुक इट इन अ डिफरेंट वे। जैसा मैं भी अपना इनके बोलती हूँ, मेरे ग्रैंडफादर जब गए, so I, even now I'm realizing how I took that. Okay, So it is how you take it. Yeah. अब जैसे Normally she would माय get. अब जैसे go ahead, Parveez. माय दादी एक्सपायर्ड, मुझे लगा मेरी दादी चली गई ओके तो घर से सेलिब्रेशन चली गई, घर से खुशियां चली गई। लाइफ में हाउ यू टेक इट। आवाज फ्रीज हो गई। ओके, मैं फ्रीज हो। अच्छा, अभी आ रही है? आ रही है आ रही है ना? हाँ। अच्छा, डॉक्टर से वही फ्रीज हो गया। हाँ हाँ, ये तो क्या बोलूं? मैं कहती ऐसा मतलब लगे हाउ यू मैं टेक इट। सॉरी सॉरी, एक जना कोई नहीं। आप बोलो डॉक्टर सलूजा, आप बोलो। मैं ये कह रही हूँ कि हाउ यू टेक इट, हाउ यू टेक लाइफ and emotions that create the sickness or Yes. happiness. Yeah. And not in that moment, in particular that moment, and how emotionally we are connected to the mesh. It seems all healings required in the child healing. Yeah, totally. So अब जैसे when my दादी एक्सपायर्ड, मेरे को ऐसे लगा कि when she expired तो खुशियां चली गई घर से, सेलिब्रेशंस चली गई घर से, तो मैं उसी इंसिडेंट से उसको कनेक्ट करती थी हमेशा ना। ओके, हाँ। यस। और सेम सिचुएशन, जैसे आपने कहा कि सेम सिचुएशन हर पर्सन के लिए अलग हो सकती है। मतलब जिस तरह से वो जिस इमोशनल स्टेट में है, जिस तरह से चीजों को ले रहे हैं, उस तरह से वो इफेक्ट शो करती है बॉडी में। जैसे वो शेयर कर रहा था, या आप भी अगर रिलेट करेंगे, तो वो उसको एक्चुअली तो अटेंशन ज्यादा मिल रहा था पहले, जो सिर्फ दादा का काइंड ऑफ वही ड्यूटी थी कि घुमाने जा रहे हैं, जो भी चीजें लेके आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, जो भी चीज चाहिए मतलब उसको वो मिल रही है। वो अटेंशन जब उसको देखा, तो ऑलरेडी सारी फैमिली उसको उतना ही केयर कर रही थी। पर कभी कोई अवेलेबल नहीं है या कुछ जाना है, तो अभी नहीं, शाम को दे देंगे। तो वो उसको इफेक्ट वो भी उसको उसी तरह से ले रही थी कि देखो मेरी चीज इस समय पूरी नहीं हुई, दादा होते तो मेरे को मिल जाती, मेरे ग्रैंडफादर होते तो मिल जाती, तो मतलब मेरे लिए खुशी नहीं है भाई, मेरे को खुश होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, सब कुछ ये खुद करना पड़ेगा। इस तरह से इतनी छोटी छोटी बातें वो 5 साल की बच्ची सोच रही थी, पर वो इफेक्ट 20 साल बच्चे की एज में भी दिख रहा था। वही, क्योंकि माइंड हमारा वहां से ही ऑपरेट कर रहा है, उस समय वो फ्रीज हो जाता है। काइंड ऑफ जैसे प्रोग्रामिंग जो हमारी नॉर्मली बनती है ना, एक मिनट, हाँ, वो थोड़ा सा मैं स्टार्टिंग से उसको अलग वे में काइंड ऑफ, मतलब किस तरह हमारी प्रोग्रामिंग बनती है, किस तरह से इमोशंस इफेक्ट करते हैं, वहां से शेयर करो जो ऑलरेडी कुछ जानते हो या कनेक्टेड हो। जब हम बॉर्न होते हैं ना, तो 0 से 2 साल की एज में जो भी चीजें हमारे साथ होती है, वो हम सिर्फ उसको एक्सपीरियंस करते हैं कि ये ऐसे होती है। कुछ भी उसमें ना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ना अच्छा ये अच्छा है बुरा है, कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ जो होती है वो देख रहे होते हैं कि ये अच्छा ये हो रहा है। 2 से 7 साल की एज में हमको कैसा लगता है वो फील करना शुरू करते हैं, उन चीजों को कनेक्ट करना शुरू करते हैं कि अच्छा ये हुआ तो ये हमको मेरे को अच्छा लगा, मुझे ये बुरा लगा, ये सही लगा, ये गलत लगा, इससे मुझे हर्ट हुआ, ऐसे होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये पेनफुल था, ये था। वो चीजों को हम कनेक्ट करना शुरू करते हैं, इमोशंस को जोड़ना उससे शुरू करते हैं कि ये मुझे कैसा लगा। सेम सिचुएशन में किसी ने डांटा, तो उसका रिएक्शन कैसे ले रहे हैं, कोई एकदम चुप हो जाता है, कोई सामने जवाब देता है, कोई वहां से निकल जाता है। तो वो इमोशनल स्टेट पर्सन का डिफाइन करता है कि वो किस तरह ले रहा है, हम किस तरह उस चीजों को ले रहे हैं। तो वो हम उस
को उस तरह से बनाते हैं। और 7 से 12 साल की एज में अगेन 1-2 साल आगे पीछे परसेंट टू परसेंट डिपेंड करता है, ये जस्ट एक एवरेज एज बोल रहा हूँ। तो 0 से 2 की जगह 1 से 3 साल भी हो सकता है, मतलब 0 से 3 साल भी हो सकता है, 0 से 1 साल भी हो सकता है। और जो 2 से 7 साल बोल रहा हूँ वो 1 से 8 साल, 2 से 8 साल, 9 साल, 3 से 9 साल, जैसे कि एवरेज एज जो नॉर्मल जिस तरह से हमारा माइंड फंक्शन करता है, जिस तरह से हमारी प्रोग्रामिंग बनती है। और 8 से 12 साल की एज में जो हमने 0 से 7 साल की एज तक, 8 साल की एज तक जो हमारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं और जिस तरह से हमने लिया है उनको अच्छा या बुरा बनाया हुआ है। भाई हमको अच्छा लगा, हमको अच्छा नहीं लगा, ये पेनफुल था, ये एंजॉयफुल है, ये सॉरो है, मतलब ये बुरा, मतलब मुझे सैड फील कराता है। तो उसको 8 से 12 साल की एज में हम अपना लॉजिकल माइंड डेवलप करना शुरू करते हैं, एक काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग डेवलप करना शुरू करते हैं कि अब से हम इसी तरह से लाइफ जिएंगे। कि कोई बोलता है तो कैसे स्ट्रेस में किस तरह से रिएक्ट करते हैं। वो स्ट्रेस जो नॉर्मली बचपन की एज में पढ़ाई का भी स्ट्रेस हो सकता है, किसी ने बोला कि ये नहीं करना है तो वो भी स्ट्रेस होता है। ये करना चाहते हैं, किसी ने रोक के बिठा दिया कि नहीं करना है, या खाना नहीं है, या जाना नहीं है, धूप में नहीं जाना है, तो वो भी स्ट्रेस हो सकता है उसके, मतलब इतना। पर उस चीजों को हमने किस तरह से लिया है, वो उसको स्ट्रेस के लिए तरह लिया है, केयर की तरह लिया है, प्यार की तरह लिया है, या उसको फाइट की तरह, रिबेल की तरह लिया है कि नहीं मुझे तो करना है तो मैं तो कर लूंगा या कर लूंगी। तो उस तरह से हम 8 से 12 साल की एज में वो हमारा लॉजिकल माइंड डेवलप करते हैं कि हम इस तरह से अभी हम इस तरह से लाइफ जिएंगे, ये जो हमने सीखा है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी पूरी लाइफ जिएंगे। तो 8 से 12 साल की एज में हमारा लॉजिकल माइंड डेवलप होता है, उन एक्सपीरियंसेस को लेके हम करते हैं, जिसके बाद जो चीजें हमने शुरू, मतलब डीप में है जो एक्सपीरियंसेस 0 से 7 साल, उसके बाद न्यू एक्सपीरियंसेस जो भी होते हैं तो कहीं ना कहीं उसके अकॉर्डिंग हम रिएक्ट करते हैं, वहां पे चेंज नहीं करते हैं मोस्टली। जब तक कुछ मेजर ट्रॉमा होता है या तो बहुत सी सारी चीजें पसंद है तो उसको रेगुलर रेगुलर रिपीट मोड पे बार बार करते हैं, तो वो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ठीक इमोशन चेंज कर पाते हैं। बाकी मोस्टली हर चीज का रिएक्शन वैसे ही आता है जैसे हमने 0 से 8 साल या 12 साल की एज तक दिया हुआ होता है। हाँ सुगंधा। हाय उमेश, थैंक यू इतना अच्छा सब कुछ बताने के लिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि फिर हम सब चीजों को एड्रेस कैसे करें, कि कौन सी चीज हमारे कौन सी इमोशन से कनेक्टेड है, या कब हमने किस चीज को ऐसे परसीव कर लिया कि हम उस चीज को आज तक एज अ डिजीज लेके चल रहे अपनी बॉडी में। हाँ, उसको परसीव करने का जो चीज जिस तरह से शो अप हो रही है ना, चाहे पेन की तरह चाहे डिस्कम्फर्ट की तरह, जरूरी नहीं है कि वो डिसीज ही हो, सिर्फ पेन या डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है। मूड खराब होना, बुरा लगना भी, इतनी सिंपल सिंपल चीजों से भी वो एड्रेस कर सकते हैं। तो वो अगर हो रहा है तो वो कहाँ से हो रहा है, क्यों हो रहा है, जैसे ही पूछेंगे खुद भी कर सकते हैं, और कहीं पे उससे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं एनर्जी परफेक्ट, तो जो मेरा काम है काइंड ऑफ मैं वही करता हूँ। उसमें जो शब्द बोलते हैं, मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ और जैसे ही जो शब्द बोलते हो जिस वे में बोलते हैं, और कहाँ पे उसमें एनर्जी लगती है या चार्ज लगता है कि कहीं ना कहीं इससे कंफर्टेबल नहीं है, या इसके अराउंड पीछे वो बोल कुछ रहे हैं पर उसका एनर्जेटिकली मतलब कुछ और है, तो जैसे उसके अराउंड फिर दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, या उससे कनेक्ट करके जो मेरे को लगता है उसके अराउंड क्वेश्चन पूछता हूँ। तो वो चीज से हमको वो इमोशन कहाँ से आ रहा है वो पता चलता है। सेम चीज अगर खुद भी कर लोगे सुगंधा तो वो भी कनेक्ट कर सकते हो खुद भी, पर उतना प्रेजेंट रह के कि चीज एक्चुअली वो बुरा लग रहा है तो क्यों लग रहा है, अच्छा इस टाइम पे मुझे एक्चुअली बुरा लगना चाहिए या नहीं, या हर्ट होना चाहिए कि नहीं, तो वो कहाँ से आ रहा है। जैसे जैसे उसमें डीप में उतरते जाएंगे, अगर खुद जा पा रहे हैं तो बहुत अच्छा, तो उसमें कनेक्ट करते जाएंगे तो पता चलेगा कि अच्छा ये यहाँ से आ रहा है। So, Umesh, what is थैंक यू, this ये तो बहुत modality? ह्यूज है। इट्स ह्यूज। Umesh, what is this modality? It is integrated clinical hypnotherapy. Okay, And okay. I Hypnotherapy. integrate it with Access also. So it Okay. will make it much more easier for me. मतलब Access और hypnotherapy का combination Yeah. is the world's best combination. Hypnotherapy and with the clearings, right? Yeah. Right. Okay. So we can go to the core very easily. Sometimes what happens कि सिर्फ hypnotherapy में जब बहुत deep में होते हैं तो कभी-कभी नींद या kind of वो process extend हो सकता है। Yeah, yeah.
तो ये उससे बहुत फास्ट होता है, क्योंकि कभी कभी माइंड वो थक जाता है तो सोना है, तो साथ साथ में उसमें क्लियरिंग्स और वो कर दिए, तो चीजें जहाँ जहाँ पे एनर्जी आती जा रही है उसको एड्रेस करके क्लियरिंग्स में और उसमें। सो Thank you उमेश so ये पर्टिकुलर सॉरी And, उमेश ये पर्टिकुलरली ग्रुप सेशंस होंगे या इंडिविजुअल सेशंस हैं आपके ये? ये जो है ग्रुप सेशंस हैं और इंडिविजुअल सेशंस भी होते हैं, तो मतलब वो भी करवाता ही हूँ। ये जो मतलब रखा है वो ग्रुप सेशंस के हिसाब से प्लान किया है, और दोनों ही चीजें हैं कि इंडिविजुअल सेशंस भी रहेंगे ही रहेंगे। किसी को टाइम की वो है कि टाइम कम है, और ये हाँ कि तो एनर्जी एक्सचेंज भी बता रहा हूँ, उससे कहता हूँ। ये बहुत जनों को होता है कि उतने टाइम नहीं निकाल पाते। वैसे तो अगर साथ में रहते हैं तो ग्रुप में दूसरे जैसे जिनके भी क्वेश्चंस आते हैं वो भी कंट्रीब्यूट करते ही हैं, पर टाइम के हिसाब से किसी को वो कम है कि हर रोज इतना टाइम नहीं दे पाते हैं, या क्योंकि ग्रुप कॉल्स होंगे तो 2-3 सेशंस में, 4 सेशंस में हो सकता है एक बार नंबर आएगा एक जन एक को उस तरह से एड्रेस करने का। बाकी तो क्वेश्चंस तो सबके आएंगे ही आएंगे, आंसर तो होंगे ही, और जो इफेक्ट भी 100% सबको पड़ेगा ही। पर जिसको चाहिए कि टाइम अगर किसी के पास कम है तो उस हिसाब से उसके लिए पर्सनल सेशंस भी हैं, और वैसे ही भी टाइम होते हुए भी पर्सनल सेशन देना चाहे तो भी है। दोनों में जीतू का जैसे क्वेश्चन था एनर्जी एक्सचेंज, तो उसमें ऐसा है 2 फॉर्मेट्स हैं। ग्रुप कॉल्स के लिए 25,000 है 4 मंथ्स का, जो 100 डेज से 120 डेज जैसे रिक्वायर्ड होगा टोटल 4 मंथ्स का। अगर एक साथ पे करते हैं तो मंथली पे करते हैं तो 7,000 पर मंथ है 4 मंथ के लिए। और पर्सनल सेशंस लेते हैं तो 25,000 पर मंथ का है, जिसमें 8 सेशंस रहेंगे। सेशंस का अराउंड अराउंड सेम ही रहेगा, वीकली 2 सेशंस ही होंगे, और एक सेशन 1.5 से 2 घंटे का रहेगा अराउंड अराउंड। वो जैसे चलता है 1.5 घंटा 2 घंटे, कभी कभी ढाई भी हो जाते हैं। वो रहेगा। Like 25,000 if a Can you person is show me taking for 4 months. one या And also यस, if the group में होगा तो भी क्या, तब ग्रुप में होगा तो क्या होगा? ये ग्रुप सेशन ही है। मतलब ग्रुप के लिए 25,000. 25,000 4 मंथ के हैं, और पर्सनल सेशंस का 1 मंथ का 25,000 है। अच्छा ठीक है, ठीक Umesh, है, okay. और can you वैसे show ग्रुप me by सेशंस में अगर example? मंथली मतलब किसके लिए एग्जांपल से शेयर करूं? Can you take for sugar only? Can you take one या example and show how you are going to heal? या श्योर। Sarita, is there a question? मतलब, were you asking something before Yeah. that? I was asking, can you Yeah, take yeah, by I heard example? you. Yeah, I Can you heard hear you me? that I am going. Yes, yes. Can you hear me? Yes, yes. Yeah, I'm asking you, can you take an example and show how you Yeah, sure. I heard you. I am taking an example. Before that, I was just thought Sarita is asking, so I was asking her, okay, were you asking something? So before that, I can take a question. I already asked you what question I am. Acha, okay, fine. Okay, I Yeah. want to ask you one question. Right now, I'm worried Yeah. about my daughter's exam. She's in class 10th. I'm really worried Okay. because she's not very serious in her studies. She's very Okay. casual. So Yeah. this is creating the worry in me. Now, how will you clear this? Mhm. Okay. So if I ask you what makes you so worried about your daughter, granddaughter you said, or daughter you said? Sorry. My daughter. My daughter. Yeah. So what makes you worried about your daughter? She's very casual, not serious in her studies. Okay. Hmm. So do you think she will fail? No, she's doing very well in academics, but I'm not very Okay. happy with her results. Okay. And what would you like to do about her? Does she likes to uh, be more careful, मतलब more focused, Yeah. or she's fine with the way she's performing? She has her own way of learning, her own way of studying. Yeah. Hmm? So Okay. she doesn't want to Yeah. listen to me. If I tell her any instruction, if I give her any instructions, she doesn't want to take it. Okay. So why do you want to take your instructions? Because she requires it.
She's Okay. only 14 And years how do old. you know she requires it? I know, I'm seeing Y- her. I'm a teacher by You s- profession. I know. अच्छा. And you said just before that कि it is her, मतलब her way of learning is different. Hmm. So do you think कि she should listen to you? मतलब she should Yes, follow you, not listen to you. Actually, there's a of difference course. between listening and following. Hmm. Like for So do you think example, the way you if I learn tell or you her, are telling? Yeah. no, in case I tell her that, Chitra, you study in the evening and then you sleep by 11 o'clock, Yeah. by 11 o'clock, then Yes. she will say that, 1 second. Yeah. धीरज मैं 1 मिनट में फोन कर रही हूँ मैं रुक जाओ मैं फोन करूंगी अभी हेलो हेलो Yeah. हेलो Yes. Yes. Yeah. So if I tell her that to sleep on time because her body repairs from 11, everybody's body is repairs from 11 to 3 o'clock. It is very essential for her to sleep on time because she has to go in the morning at 6 o'clock to school. But she doesn't listen. She will study till 1 o'clock, 2 o'clock, and then goes to school, and then there she's very drowsy, not able to be attentive and alert. All this kind of Mhm. things. So I've seen that her Yeah. performance is not very good up to the mark as much as far as I want her to be. So all this are giving, I'm feeling very difficult to handle this situation, being a teacher. Okay. Mm. Yeah. My question is, how does she likes to perform? Do you think you have to decide for her कि how is she going to perform, or she has the choice the way she likes to perform? She's very confident that she will do well. Yeah. She says So she what wants to be a makes you doctor. very? She says she wants to be a doctor and Yeah. scoring only, right now, scoring only 80%. Okay, at 80%, she Okay. can't do anything in life. Okay. And Mm. how do you know that she can't do anything in life with that percentage? No, she cannot. Because right now she's getting 80. What will happen in the final exams? She has to study the whole lot of it, whole lot of syllabus. How will she cope up? She's not serious. She wants to go play. She wants to enjoy life. Hmm. Huh? Hmm. Yeah. And the So you last want to make her priority is serious? and she wants the last is studies. Her priority in her priority You studies want to is make her serious? yeah. I am asking you, would you? Why? She needs to be serious in studies. Who had She's in said that? class 10 board exams. Yeah. But Mm. who had said that to score good marks or to perform well, that you have to be serious? One has to be serious, isn't it? Yeah. Who had said that? Is it the real? Is it reality, Of course, or yes. is it the only way to score? Mm. Yeah. How many of you, if I ask you just not making anyone right or wrong, I am very positive and happy person. I detected diabetes 6 months before. After 6 months, medicines. Okay. So you are always happy, or it's just within last 6 months? You are saying. Do you mean to say you hadn't? There isn't a moment that you have felt emotionally weak or thought that there's no happiness for you? And Yeah, No, the not thing what is your at all. name, if I get you? I'm very worried. I'm very much very worried. No, I was asking just from that thing. Her name also Zoom user. What is your name? So sorry. Revati, you've forgotten me. Revati, I am coming. I am asking another person. Acha, okay. Yeah, that's what I said. I am just asking her, and we'll get back to you in a moment. Hello. Hello. Yeah. What's Yeah. your name? Yeah. Yeah. Can I have your This name, is please? Manisha. Yeah, this is Manisha. Manisha. Okay, okay. Oh, fine. I was reading a Google. Yeah, Manisha. How are you? Fine.
Yes. Yeah, tell me. Yeah, As you have written, yeah. Yeah, go ahead, please. Yeah, you may proceed. You read the entire my question, na? Yes. Yes, so I was asking you, do you think, if I ask you, do you remember any moment in your life that you were emotionally down, or you have thought that there's not going to be happy? It is going to be tough to be happy for just a No, moment, for a day, for an hour, for a week, month, year, whatever. Is there anything since you were born yeah, that yeah. has made you Means unhappy? I take everything otherwise. Means if something happened with me negative, or Yeah. something make me sadden, or something make me unhappy, I take it otherwise. That if this is not happen with me, it's okay. It will be happen. Or the situation I'm handling is very positively. Very quickly I'm accepting the things which means which happen with me. So how this happened with me of diabetes? So are you compromising it? Okay, now I have to face this. This is not what I desire, but if it's happening, I have to be cope up with this. Do you mean to say that? That is the life. As you're Na? saying, Yeah, that is the life. is that really the life? Would you like to go beyond that life and create what you like to have? Yeah, I am creating. I am trying to create Well, the what things. if? Yes. Yeah, not with compromising. As you said, I am catching your words only and repeating or pointing it out in your words only. Okay. If this is happening, if you are taking in a positive way, matlab, there's a chance you are already thinking if have happened some other way, it could have been better. But now as it is happened, so I have to cope up with that thing. Yeah. And you are Yeah. playing around that. Again, Yes. there's nothing wrong, but you are trying to make it positive. Matlab, if there's nothing right or wrong or positive or negative, how would you like to live? Or how would you like to take things? I'm not getting your question. Hello. What does positive means to you? Positive means things which are not correct for me, or which are not right to me, but I am taking it as otherwise, as positive. That if this happen with me, then okay, I will. Yeah, in Gujarati we can say that padsewa deva se. Things which happen with us, we can cope up with that things. It means we can do what we are facing. Oh, yeah. So why this happened with me? You tell. If I ask you, when was the first time you were not happy, or when you were sad? So, what is the first moment that comes to you? First thing is that I have to make this thing better. Okay. Better compared to things the which way you I have thought. didn't like. A situation which I didn't like, then I have to try for make that things things towards me, means things, the results can come to me positively. Okay. So, what is it in the situation that you don't like? Yeah, I am addressing Revati. I am coming back to you. No, I am coming back to you. I am saying. I am coming back to you. I am saying, Revati. Is it audible to you, Revati? Yeah. Is it audible? Yeah, उत्तर बताइए, क्या बता रहे हैं आप? या मैं पूछ रहा था कि अगर पूछो तो उस सिचुएशन में क्या है जो नहीं पसंद आ रहा है या नहीं अच्छा लग रहा है? डायबिटीज है तो उसमें इंसुलिन लेना पड़ता है, वो पसंद नहीं आ रहा है. ओके. कब हुआ था डायबिटीज, क्या हुआ था? बहुत शॉर्ट में जा रहे हैं, जस्ट एक अभी तो मैं बाकी उसमें डीप पे. 6 मंथ पहले ही डायग्नोसिस हुआ है, और उसके पहले
मंथ्स के पहले, यानी मुझे मार्च में डायग्नोसिस हुआ तो उसके पहले अक्टूबर में मैंने फुल बॉडी चेकअप करवाया था, तब तो मैं नॉर्मल थी, तब मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। और 6 मंथ पहले ओके जब डायग्नोसिस हुआ तब मेरा HB1AC है 13.5 था। सो इट इज अ वेरी बिग थिंग। सो एकदम से इतना सारा क्यों बढ़ गया, और ऐसा कुछ लाइफ में हुआ नहीं है 6 महीने में कि ऐसा कुछ होना चाहिए। यस ओके। सर हम पूछो तो सिर्फ जहाँ पे पहला टेंशन जा रहा है वो बताना, कुछ भी लॉजिकली सोच के या ये होना चाहिए ऐसे कनेक्शन हो सकता है वो नहीं। एक तो आंखें बंद करो ओके और एक गहरी सांस लो। टेक अ डीप ब्रेथ एंड एज यू एक्सेल अलाउ योरसेल्फ टू रिलैक्स कंप्लीटली। ओके एंड नाउ जैसे ही मैं पूछ रहा हूँ, जैसे ही मैं पूछूंगा, तो जहाँ पे भी मेरे क्वेश्चन के बाद जहाँ पे भी आपका पहला अटेंशन जा रहा है या जो भी चीज सबसे पहले आपके माइंड में स्ट्राइक हो रही है वो मुझे बताना। तो 6 महीने जब डिटेक्ट हुआ, 6 महीने से 1-2 महीने पहले के अराउंड क्या हुआ था जिसकी वजह से ट्रिगर हुआ, तो सबसे पहली चीज कौन सी आ रही है वो बता। चाहे उससे रिलेटेड हो या नहीं हो, कोई जरूरत नहीं कि उससे रिलेशन होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए, वो 1-2 महीने पहले ही हुई हो सकता है 1 महीना एक दिन पहले हुई हो सकता है 1 साल या 10 साल पहले हुई हो। सिर्फ जहाँ पे पहला अटेंशन जा रहा है वो बता। अटेंशन फाइनेंशियल उस पे जा रहा है, फाइनेंशियल सिचुएशंस पे जा रहा है। ओके क्या हो रहा था फाइनेंशियल सिचुएशंस में, जस्ट उसके साथ ही प्रेजेंट रहो और देखो तो फाइनेंशियल सिचुएशंस पे क्या टेंशन हो रहा है, क्या स्ट्रेस है उसके अराउंड या चिंता है। तो बेसिक होना चाहिए, जैसे चिल्ड्रन का फीस वगैरह कॉप अप करना, या वो नहीं हो पा रहा है ऐसा लग रहा है। ओके पर वो क्यों लग रहा है? और लैक ऑफ इनकम। जस्ट ओके ठीक है। वो इनकम सडनली कम हुई, कुछ कुछ लॉस आया या सडनली ड्रॉप हुआ कुछ या फ्लो में? नहीं नहीं, ऐसा क्या? सडनली नहीं हुआ है, पर अब यानी जैसे बच्चे बड़े हुए हैं तो तो बढ़ा खर्चा है। बढ़ा है। हाँ, खर्चा बढ़ा है। अच्छा हाँ भाई ओके। तो ऐसा लगता है कि जो चीजें हमने पॉजिटिवली ली, जो जिसको हमने सोचा था कि कॉप अप कर पाएंगे, तो नहीं कर पा रहे हैं। ओके बाकी तो कुछ है अगर नहीं हाँ ऐसा। हाँ बाकी कुछ होता, जरूरी नहीं है कि बड़ी चीजें हो। मैंने तभी आप स्टार्टिंग में थे शायद या लेट ज्वाइन किया, तो एग्जांपल्स कुछ शेयर किए थे 2-3, वो उसके लिए ही किए थे कि कितनी छोटी छोटी चीजें होती हैं पर वो ट्रिगर पॉइंट हो सकती है, और जरूरी नहीं कि सिर्फ वो एक ही चीज हो उसके बाद सीरीज हो। ये जैसे फाइनेंशियल आ रहा है तो ये ट्रिगर पॉइंट भी हो सकता है, कोर भी हो सकता है। जहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ तो ये ट्रिगर पॉइंट है, उसका कोर उसके काफी नीचे मतलब और डेप्थ में होगा। तो वैसे देखो तो खुश हो, और खुश हो भी भाई, उसमें वो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि खुश नहीं हो, पर इमोशनली जहाँ पे किसी भी चीज को हम कनेक्ट कर लेते हैं ना कि अच्छा ये होगा तो हमको वो होगा, या इसको मेंटेन करने के लिए तो हमको एफर्ट डालना पड़ेगा, और डाल पा रहे हैं फिर भी रिजल्ट नहीं आ रही है, इतनी छोटी छोटी चीजें भी वो क्रिएट कर सकती है। तो वो काइंड ऑफ भाई खुशी नहीं है अभी तो हमको वो करना पड़ेगा। तो सिचुएशन नहीं बदलती है, हमारे देखने का जो वो कराऊंगा तो हमारे देखने का नजरिया बदलता है, और जिसको हम एफर्टलेसली वो इनकम भी क्रिएट कर सकते हैं वैसे भी, या जो भी चीजें होती है वो ऑलरेडी ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाती है। ये जैसे देखा कि अभी तक कुछ नहीं, पर फाइनेंशियल प्रेशर उस टाइम था, प्रेशर इन अ वे कि किस तरह होगा, भले बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं पर किस तरह होगा वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहा है। और वो काफी टाइम से है जो कोप अप करते आ रहे हो काइंड ऑफ पॉजिटिवली लेके, और वो सही या गलत नहीं है, हर कोई करता है। जस्ट हम किस तरह से उस टाइम पे हम किस तरह से ले रहे हैं, मतलब आप किस तरह से उस चीज को ले रहे हो, तो वो उसके डीप डीप में मतलब उसके अराउंड अराउंड और क्वेश्चन जो अभी भी आ रहा है, पर वो करूंगा तो 1 घंटा इस चीज में चला जाएगा सिर्फ एक चीज को एड्रेस करने के लिए इसमें, और उसके अराउंड जितनी चीजें निकलेगी उनको और एड्रेस करने में, मतलब वैसे टाइम जो सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं ना ज्यादा, या टाइम बोल रहा हूँ तो वो उसके वैसे ही होता है कि बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, कोर एक चीज होती है पर उसके ऊपर जो लेयर्स बनती जाती है ना, इमोशंस की, किस चीज को किससे जोड़ दिया, अच्छा ये नहीं कर पा रहे हैं मतलब ये देखो कहीं ना कहीं पैसों की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, या फाइनेंशियल फ्लो होता है तो हम ये कर लेते, या रिलेशनशिप को ग्रो कर लेते, या जो भी चीजें होती है।
तो वो हाँ ऐसे एक चीज से हमारी 100 चीजें जुड़ी हुई होती है, इस तरह से छोटी छोटी चीजें होती है। हाँ तो वो जैसे जैसे करते जाएंगे एड्रेस, तो उसको वैसे वैसे वो क्लियर होता जाता है, और वो डायबिटीज देखोगे तो बिल्कुल रिवर्स भी हो जाएगा। क्योंकि ये इसके पैटर्न्स भी अगेन बचपन से आ सकते हैं कि किस हमने खुशी को क्या डिफाइन किया हुआ है, हैप्पीनेस को क्या डिफाइन किया हुआ है। हैप्पीनेस का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ हंसते रह रहे हैं तो ही हैप्पीनेस, सीरियस रह के भी खुश हो सकते हैं, मतलब अंदर से हम कितना कंफर्टेबल और रिलैक्स्ड हैं ऐसे। और रिलैक्स भी है तो मतलब स्ट्रेस कितना भी है, किस चीज को किस तरह हैंडल कर रहे हैं और वो कितना कंफर्टेबल है, एक्चुअली वो प्रिटेंड कर रहे हैं या ये सही है उसके लिए कर रहे हैं, ये अगर ऐसे किया तो गलत होगा उसके लिए वो कर रहे हैं। जैसे रेवती जी का था कि बच्चों को पढ़ना चाहिए, अगेन रेवती जी नॉट मेकिंग इट द पॉइंट और रॉन्ग फ्रॉम रॉन्गनेस, इट्स जस्ट कि जब पहले था कि ये पढ़ना चाहिए, पढ़ेंगे तो ही 80% मतलब 80% मार्क्स से साइंस में नहीं आ सकता है, डॉक्टर नहीं बन सकती है, और वो सब चीजें तो वो देखते हैं, अगर देखें तो एक्चुअली वो फैक्ट है। ऑल द पेशेंट्स आर इक्वली बेनिफिशियल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, आई थिंक should do and receive these, yeah, हमारे total it's equally beneficial whether it's online or offline. Thank you for that question. हाँ रेती जी, तो आपको लगता है कि एक्चुअली ये फैक्ट है कि 80% मार्क्स में डॉक्टर कोई नहीं बन सकता है, अगर आपसे पूछूं तो, या इजीली नहीं मिल सकता है, ऐसे लगता है कि वो सीट इजीली नहीं मिलेगी, या हो सकता है पैसे ज्यादा देने पड़े, या उसके बाद भी प्रॉब्लम हो, या बाहर जाना पड़े, कहीं और कंट्री में जाके करना पड़े मेडिकल डॉक्टर बनने के लिए, यहाँ हो ही नहीं सकता है, आप ऐसे बोलते हैं 80% मार्क्स में। और उसके अभी 14 इयर्स की एज में 80% है तो उसकी मार्क्स, अगर आपने उसको सिखाया नहीं तो वो उस 80% मार्क्स से ज्यादा स्कोर कर ही नहीं सकती है। रेवती क्या है? रेवती, रेवती जी, Yeah, हाँ, ओके, आइए, yeah, yeah, I'm listening. Yeah, take your time and just answer. Yeah, मतलब what do you think? Just please share. What did you say? I was saying, do you think that it is impossible to become doctor with if she gets 80% marks in What 12th I mean to standard? say is, not that is not the thing. Yeah. That's not the thing. But one has to really strive, One has Yeah. to really And are you strive. sure she wants to become doctor if she's saying she wants to become a doctor? Hello? Yeah, I am asking, do you think if, hello? Yeah, tell me. I'm asking, do you think she will become, she really wants to become a doctor if she's saying that she wants to become a doctor? Yeah, yes. And do you think if she will become, she will fail also? If she will fail also, then she has the opportunity to do the class again, whether it's 10th, whether it's 12th, and then to become a doctor? See, the question of failure is not there, okay? What I mean Yeah. to say is that optimum result is what is expected of. What is it that's making you so much focused or stuck in the result? Not only result, Who and how old are you being? other things Who are and also how there. old are, listen to the question. Who and how old are you being? So let me, मतलब जो भी पहला नंबर आ रहा है, पहली एज आ रही है, पहला इवेंट आ रहा है, वो बताओ. Who and how old are you being when you are so much focused or fearful of results or worried about results? तो फर्स्ट थॉट, फीलिंग, इमोशन या क्या आ रहा है, वो चीज बताओ. Worried actually. Yeah. What are you worried about, or when was the first time you were, you felt you were worried in similar situation or in similar way? So give me the first event that comes to your mind, or first thought, feeling, or emotion that comes to your mind with worry. Many things are there which has come. Yeah. So the first thing that strikes. Would you like to share the first thing that strikes your mind? Yeah. You know it. Okay.
Yeah. And I think we had this. I told you okay, that is also, you can release that also very easily with the way I guide you. मतलब, as it shows up in the similar way I am talking, as I'm talking today only. The sessions we go to the core of it, where that insecurity is coming from, that is making you worry or stress. Did you remember? I had told you that it's very easy to go beyond that. Yeah. So we take as thank you for asking and sharing that thing. So this is how, the thing I was sharing. No, we take everything referring one way. How we take the things in the childhood. So this is exactly the example of that. कि जैसे हम एक चीज को लेते हैं, वैसे ही मोस्टली हम कॉन्शियस या अनकॉन्शियसली चीजें, सिचुएशन बहुत अलग हो सकती है, पर एनर्जेटिकली जहाँ पे वो स्ट्रेस की एनर्जी आई या वरी की एनर्जी आई, तो हमारा माइंड उसमें सिमिलरली ऑटो पायलट पे रिस्पॉन्ड करता है सिमिलर वे में। और वही इससे वही वो पैटर्न्स ब्रेक होते हैं कि हमको कैसा इफेक्ट चाहिए। एक्चुअली हम उतने कैपेबल हैं कि हम उस चीज को चेंज कर सकें, या जैसे हम चाहते हैं वैसे उसको कर सके। कि स्ट्रेस लेने की उतनी जरूरत है तो नहीं आएगा क्वेश्चन, पर हमको स्ट्रेस हो जाती है, और वो नेचुरल है क्योंकि हमने बचपन से उस चीज को लिया हुआ है। फोन का स्टैंड होना, फोन का स्टैंड क्या, और ये पोछना बराबर है बीच में, सिर्फ कपड़ा मार रही इसमें। हाँ, तो उसको कनेक्ट कर पा रहे अभी चीजें जो देख पा रहा हूँ, तो जहाँ पे नेसेसिटी नहीं है, पर अभी तक कहीं ना कहीं आप रिएक्शन आपका या स्ट्रेस जो आ रही थी वो इस तरह से आ रही थी कि अगर वो कर ही नहीं पाएगी अगर नहीं हुआ तो। पर अभी बात करते करते ही आपने देखा कि कर तो सकती है, पर उसकी मार्क्स आनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं उसको इमेज से जोड़ा हुआ है। और वो वरी आ रहा है कहाँ से, मतलब सिमिलर एनर्जी, वो वरी का रिएक्शन कहाँ से आ रहा है, तो उसका मतलब ये, उसका मतलब ये है। तो जब हम उसके कोर तक चले जाएंगे ना, ऐसे उसके अंदर मतलब एकदम कोर तक जाएंगे और वो वहां से रिलीज कर देंगे, तो एक्चुअली वो फियर और वो वरी खत्म हो जाएगी। ओके। और साथ में आप प्रेजेंट रह पाओगे कि ठीक है, उसको वो जो बोल रही है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो वो बनना भी चाहती है, और या तो अगर उसने बोला है तो आपको लगता है कि उसको बनना ही पड़ेगा अभी, मतलब वो चॉइस चेंज नहीं कर सकती है। कहीं ना कहीं भाई पता भी है कि नहीं बनेगी तो भी चलेगा, पर फिर भी स्ट्रेस उसको लेके रह रहा होता है कि अगर नहीं बनी तो क्या होगा, फेल हो गई तो क्या होगा, फेल जबकि होगी नहीं, पर अगर उतने कम मार्क्स आए और एडमिशन नहीं मिली तो क्या होगा। पर देखो तो एक्चुअली उसकी चिंता करने की जरूरत है, अभी 14 साल की है। बच्चे जो 5वीं में, 4थी में, 2nd में भी फेल होते हैं, वो देख के आते आते 10th में एक अपना आता है जब उनको जो करना होता है, तो वो टॉपर भी बन जाते हैं, पूरी स्टेट में भी, पूरी कंट्री में भी। तो उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत है। और किसी को कुछ भी सिखाना अगर प्रेशर करके जो नहीं करना चाहते हैं वो कराओगे, तो उसमें लगता है आपको कि सक्सेसफुल होगे, वो दिखाने के लिए ही पढ़ेंगे उतना फोकस्ड। आप बांध के बिठा भी रहे हो उसको 2 घंटे की जगह 4 घंटे बिठा रहे हो, 1 बजे तक तो नहीं पढ़, उसको पढ़ने में मजा आता है रात को 1 बजे के अराउंड ही, भाई 10-12 के बाद खेल लिया, सो लिया, या जो भी कर लिया, उसके बाद शांति से। और आप बोलोगे 1 बजे पढ़ना गलत है, तो उसको हो सकता है कि उसका मूड चला जाए। दोनों बातें हो सकती है। हो सकता है कि वो पढ़ने के हैबिट्स भी चेंज कर दे और उसमें भी कंफर्टेबल हो जाए, पर दोनों दूसरे साइड ऐसा भी हो सकता है कि उसका मूड ही निकल जाए। जब उसको पढ़ना है, उसको पढ़ने नहीं मिल रहा, तो बोले बाढ़ में जाए, पढ़ाई पढ़नी नहीं है, पढ़ना ही नहीं है। करेक्ट। और साथ में एक इनविटेशन बन सकते हैं फोर्स की जगह। और दूसरा, वो कहाँ पे लगता है आपको कि 11 से 3 के बीच में नींद आती है तो ही बॉडी हील होती है। 11 से 3 का टाइम तो इंडिया में, अगर दूसरे कंट्री में चले जाओगे तो वो टाइम डिफरेंस ही, वो घंटों का फर्क आ जाता है। जैसे दुबई चले जाओ तो 2 घंटे का फर्क है, 4 घंटे का फर्क है, यूके में 6 घंटे का फर्क है। हर जगह टाइम का, तो टाइम 11 से 3, वो टाइम कहाँ से, किस तरह से कैलकुलेट करोगे कि हर जगह 11 से 3 में होना चाहिए। और सेम अगर देखो तो कॉल सेंटर्स में जो जॉब करते हैं या बिजनेस जिनका इंटरनेशनली होता है, यहाँ पे रह के या बाहर से यहाँ से कनेक्टेड होते हैं, वाइस वर्सा, तो उनका टाइम जोन से अलग, उनका सोने का टाइम अलग होता है। सुबह को सोते हैं, रात को वर्क करते हैं, शाम को सोते हैं, रात को वर्क करते हैं, सुबह को उठते ही मतलब 12-1 बजे 2 बजे है। तो उनका वो क्या हेल्दी नहीं होते हैं, या उनको बीमारी होती है, या कोप अप अच्छे से उनकी बॉडी हील नहीं होती है,
जिनको स्ट्रेस होता है उसके बाद भी वो डिफरेंट रीजंस होते हैं, पर हर किसी को हो अगर वैसा सिर्फ नींद की वजह से होता हो तो वो भी कहीं ना कहीं हमने माना हुआ है। वो अगर देखोगे तो वो पेरेंट्स को कंट्रोल अगर आपके साथ हुआ है या लोगों को देखते हो कि वो बोलते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट के लिए बोल रहे होते हैं कि बच्चे शोर करेंगे, सुबह को उठना हमको पड़ेगा उनको जल्दी उठाने के लिए। भाई वो वैसे एक बार अगर सोए हुए होंगे, रेस्ट हुई होगी तो एक बार बुलाने से उठ जाएंगे, वैसे उनके पीछे 2 घंटे तक या आधे घंटे तक उनके पीछे 10 बार उठाने जाना पड़ेगा कि उठो। और तैयार तो वो एफर्ट बचाने के लिए लोग पॉइंट ऑफ व्यू डाल देते हैं कि ये करोगे तो ये होगा, उठोगे नहीं, जल्द देर से सोओगे तो बीमार हो जाओगे, ये हो जाओगे, और वो हम अपनी रियलिटी बना लेते हैं उसको। और हमारे माइंड और बॉडी को कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है उसको बीमारी बनाने में। द मोमेंट अगर वो उसको माइंड ने सच मान लिया ना कि 11 से 3 में अगर भाई लेट सो रहे हैं तो बॉडी हमारी हील नहीं होती है, तो वो हम थकान भी क्रिएट कर लेते हैं, कुछ ना कुछ बीमारी भी क्रिएट कर लेते हैं 10 दिन अगर वैसे जागे तो वो भी हमारा ही क्रिएशन होता है। जो बातें मैं कर रहा था किस तरह से चीजें, तो इतनी छोटी छोटी चीजें वो भी अगर हम उसको सच बना रहे हैं, कहीं ना कहीं स्टार्ट होता है वो अपने एडवांटेज में यूज करने के लिए। कि उसको स्कूल में नहीं जाना होगा तो बोले कि अच्छा मैं कल रात को 1 बजे तक सो रही थी, अभी थकान लग रही है, तबीयत ठीक नहीं लग रही है, एनर्जेटिक नहीं फील कर रही हूँ, वीकनेस लग रही है। 2 बार उससे फायदा देखते हैं तो तीसरी बार उसको रियलिटी बना लेते हैं। 2 बार अपने एडवांटेज के लिए यूज कर रहे हैं, तीसरी बार सही में बीमार होना शुरू हो जाते हैं उस चीज से लेके, क्योंकि वो माइंड के लिए कंफर्ट हो गया और प्रोग्रामिंग में फिट हो चुका है कि ये इस तरह से होता है। ओके। और इससे बेनिफिट मिल रहा है, कंफर्ट मिल रहा है। तो ये जो करेंगे वो हर चीज से बाहर निकलने की बात है, मतलब हर चीज के साथ प्रेजेंट रहने की, और क्या रिक्वायर्ड है, क्यों कर रहे हैं, एक्चुअली डर रखने की या डरने की जरूरत है या नहीं, ऐसे। ओके। होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। या मतलब जो या आप पूछना चाहते थे और जानते थे, बाकी तो डिटेल में मतलब हर चीज का जो एक एक चीज, एक एक टॉपिक के डीप में जाएंगे ना तो 1 1 घंटा चाहिए होता है उसको बिल्कुल जड़ से, जो आपके व्यू प्रॉपर जो आपसे कनेक्टेड है, इमोशंस आपको ट्रिगर कर रहे हैं, ऐसे। ये बहुत शॉर्ट में जब दोनों को या तीनों को जिनको भी एड्रेस किया बताया कि बहुत शॉर्ट में कर रहा हूँ, इसके लिए 2 क्वेश्चन पूछ के तीसरे में अपनी चीज मतलब कनेक्ट करके दिखा रहा था कि इस तरह से होती है। बाकी जब सेशंस में प्रॉपर वो करेंगे ना तो वो मेरा हार्डली 1 या 2 पॉइंट मेरी तरफ से आएगा इनपुट के, ये ज्यादा से ज्यादा एड्रेस करके दिखाऊंगा, और बाकी सारी चीजें आपकी तरफ से होगी। सिर्फ मेरे क्वेश्चंस होंगे कि उसका मतलब क्या है, उसके और डीप में जाओ तो क्या है। ओके। तो वो आप देख पाओगे वो कहाँ से आ रहा है, क्या चीज है, क्या है, और जैसे ही वो शिफ्ट होगा तो एकदम से देखोगे कि उसी मूवमेंट से शिफ्ट फील होना शुरू हो जाएगा बॉडी में। अच्छा, ऑल राइट। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। थैंक यू। और किसी का कुछ क्वेश्चन, कुछ शेयरिंग? No questions. So thank you for joining. और जैसे मैंने बीच में बताया, अगर किसी ने शायद सानिया जी आपने लेट ज्वाइन किया था कि पहले थे आप जब शेयर किया कि क्या क्या है, मतलब ये किस तरह से है एनर्जी एक्सचेंज, जब शेयर की थी तब थे? किसी को भी अगर ज्वाइन करना है तो इसमें 2 प्लान है, एक बार वापस शेयर कर लेता हूँ अगर हो तो भी और नहीं तो भी, क्योंकि रिकॉर्डिंग में भी वो रहेगा, तो जो भी रिकॉर्डिंग बाद में सुनता है या किसी को भी सुननी है तो एक तो वो 4 मंथ्स का रहेगा, ये पीरियड चैलेंज है, मतलब जिसमें वीकली 2 कॉल्स होंगे और ग्रुप कॉल्स होंगे। उसमें 25,000 वंस अगर एक साथ पे करते हैं तो, और 7,000 मंथली होगा 4 मंथ के लिए ग्रुप सेशंस में। और पर्सनल सेशंस किसी को भी लेने हैं तो वो है 25,000 पर मंथ, ये है जिसमें 8 सेशंस रहेंगे मंथली। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। Thank you, Umesh. Thank you so much. Thank you. थैंक यू शाम, थैंक यू अनिता जी, मालिनी, थैंक यू गीता, उमेश। रेवती।
Bye. Bye.